Let us start with optical fiber again. Let us start with optical fiber. So I hope you remember what is optical fiber. हमको आज optical fiber के advantages भी देखने हैं. We are supposed to also go through other applications of total internal reflection. So optical fiber क्या था? You should remember. So what is optical fiber? Optical fiber consists of large number of fine brass tubes बोल सकते हो. Each tube is called as fiber. It consists of a central part. तो हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर था, रिमेम्बर ऑप्टिकल फाइबर में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्स. उसमें से मैं यहाँ पे एक ट्यूब बता रहा हूँ. वन ट्यूब, ईच ट्यूब इज अ फाइबर which consists of central part known as core. Refractive index of core is around 1.7. It is, ये जो हमारे पास core है, it is coated with another substance known as cladding. Cladding is optically rarer. Cladding का refractive index था 1.5. तो cladding का refractive index है 1.5, which means denser medium है core और rarer medium है cladding. So you have core and this is cladding. Now the clear. So optical fiber consists of large number of very fine tubes. Each tube is called as fiber. Each fiber consists of a central part known as core, which is optically denser, whose refractive index is 1.7. It is coated with another material which is called as cladding, and the refractive index of cladding is 1.5. That means cladding is optically rarer medium. So होता क्या है इसमें? Light is refracted from one end of the tube inside the tube. हमारे पास एक ray of light है which basically enters the tube from one end. आप ऐसा नहीं बोलते enters, आप बोलते हो refracted. Ray of light is refracted inside the tube from one end, and light is traveling from rarer to denser. It bends towards normal. Then this refracted light, ये जो refracted ray of light है, this refracted ray of light falls on the wall of fiber. और जो wall of fiber है, it is basically an interface which separates core and cladding. So refracted light falls, कहाँ पे fall हुआ? Wall पे. किसके wall पे? ऑप्टिकल फाइबर के वॉल पे. और ऑप्टिकल फाइबर का वॉल क्या है? इंटरफेस है. क्या सेपरेट कर रहा है ये? कोर और क्लैडिंग को. लाइट एंटर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब एंड इट बेसिकली बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. द रिफ्रैक्टेड रे फॉल्स ऑन वॉल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. The angle of incidence is greater than critical angle, and hence अगर angle critical angle से ज़्यादा है तो light will be totally internally reflected, and this totally internally reflected light falls on the opposite wall. पहले ऊपर के wall पे इसका incidence हुआ था, अब यहाँ पे आ गया opposite wall पे. अब opposite wall पे वापस से क्या होगा? Total internal reflection, and the ray of light is again totally internally reflected from the opposite wall, right? तो ऐसे multiple times total internal reflections होंगे. कब तक होंगे? जब तक हमको करवाना है तब तक होगा, right? Then what happens is, हमको जब इस सिग्नल को बाहर निकालना है तब तक हम इसका total internal reflection करवाते रहेंगे, and finally the ray of light emerges out from the other end. Is that clear? Right? तो इतना ही लिखना है आपको. There is nothing a lot to write here. So you must remember basic idea. Basic idea सिर्फ इतना है. हमारे पास फाइबर था. Each fiber consists of two different materials, core and cladding. Core is optically denser, cladding is optically rarer. 1.7 ये core का refractive index है, 1.5 ये cladding का refractive index है. Light ये one end से enter किया तो bending हुआ. जिस लाइट का bending होता है उसको बोलते हो refracted light. ये रिफ्रैक्टेड लाइट वॉल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर पे इंसिडेंट हुआ, फॉल हुआ, such that the angle of incidence is greater than critical angle. अगर angle of incidence greater than critical angle हो, then in that case
there is total internal reflection. So this refracted ray is totally internally reflected and it goes to the opposite wall. It falls on the opposite wall and again it is totally internally reflected. वापस total internal reflection होगा. ऐसा चलते रहेगा कब तक? जब तक ray of light is not taken out from the other end. Not taken out मतलब it emerges from the other end. यहाँ तक clear? Today our focus will be on advantages of optical fiber and it is very interesting. ये advantages, maybe most of you will understand what I am saying. शायद पता होगा, शायद नहीं भी होगा. Let us see advantages of optical fiber. How many of you have smart TV at home now? Smart TV. Very good. तो आपको पता है smart TV works on internet. You should know smart TV actually works on optical fiber connections also. Airtel Extreme, Jio Fiber, ये सारे के सारे सेट टॉप बॉक्स के साथ आते हैं अभी. बट देयर वाज अ टाइम, यू आर लकी एंड यू आर अनलकी बोथ एट द सेम टाइम. यू आर लकी क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस. बट यू आर अनलकी क्योंकि आपको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं है. व्हेन आई वाज देयर इन स्कूल हमारे पास टीवी था. सबसे पहले तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और वो इतना बड़ा बॉक्स था, डब्बा. उस पे चैनल चलते थे सिर्फ 99, ओनली 99. अगर आपको 100 चैनल यूज करना है, पहली बात तो तब चैनल इतने थे नहीं, गिन चुन के 5-10 चैनल से फिर नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ने लगे. चैनल पता है ना, सोनी टीवी, स्टार प्लस, XYZ. एनीवेज, तो इन दैट केस 99 चैनल चलते थे. अगर आपको कोई चैनल चाहिए और अगर आपने ऑलरेडी 99 चैनल उसमें करके रखा है तो एक डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा. ये सिस्टम था सबका. नाउ और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, बाद में चेंज हुआ, बताऊंगा धीरे धीरे. विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इट हैज अ ब्रॉड बैंडविड्थ. ब्रॉड बैंडविड्थ मतलब सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी अप टू 90,000 चैनल्स. 90,000 कहाँ 99, कहाँ 90,000 चैनल्स. तो हाँ, हमको तो दिक्कत था, हम तो पता नहीं, वी हैव सीन सच डेज. पहले तो दूरदर्शन देखने के लिए एंटेना लगाना पड़ता था हमको, एंटेना, और वो भी ज्वाइंट टीम वर्क था वो. क्यों? क्योंकि एंटेना होता था छत पे, टीवी था नीचे रूम में. देन यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंटेना सो दैट इट कैचेस सिग्नल. हाँ, शक्तिमान देखने के लिए फिर हमको बोलना पड़ता था देख सिग्नल क्लियर हुआ कि नहीं. और सिग्नल यूज्ड टू बी वेरी ब्लर्ड. सिग्नल मतलब चैनल, चैनल मतलब सिग्नल. इंडिपेंडेंट सिग्नल को क्या बोलते हो? चैनल. तो पहला एडवांटेज ब्रॉड बैंडविड्थ. ब्रॉड बैंडविड्थ, बैंड मतलब यहाँ पे एक सिंगल सिग्नल को बोलते हैं बैंड. फॉर एग्जांपल आप जो फोन यूज करते हो, अभी आपको पता होगा रिसेंटली 5G बैंड्स का भी ऑप्शन हुआ. 5G बैंड्स, 5G बैंड्स मतलब वेवलेंथ का एक सेट होता है. इतने से इतने वेवलेंथ तक आप बोलते हो वन बैंड, राइट. फिर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हुआ तो सेकेंड बैंड. तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. पता है क्या? पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? हम डिटेल में देखेंगे. वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो फिलहाल इतना समझ लो, बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चैनल चलेंगे, इतना सिर्फ पता होना चाहिए. तो ब्रॉड बैंडविड्थ, तो सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, single optical fiber can carry up to 90,000 channels. 90,000, right? And very cheap. हमारे टाइम पे 400-500 रुपए के केबल कनेक्शन में 25-30 चैनल मिलते थे. अभी तो 400-500 में टीवी भी है, इंटरनेट भी है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, उसमें घर के सारे फोन कनेक्टेड है, उसमें दोस्तों के भी कनेक्टेड है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी शेयर करके रखा है. तो a lot of things have changed. तो पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ब्रॉड बैंडविड्थ.
एक सिंगल थिन फाइबर, पतला सा, एकदम पतला फाइबर होता है, इट कैन कैरी अप टू 90,000 चैनल्स एट द सेम टाइम। दूसरा एडवांटेज है लो लॉस, लो एटेन्यूएशन लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटेन्यूएशन? जब आप सिग्नल ट्रांसफर करते हो एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। अब मैं आपको रफ बता रहा हूँ, इतना डिटेल आपको है नहीं। तो इमेजिन अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो क्या होता, जो पहले कुछ साल पहले तक नहीं था। तो यू मस्ट नो, पहले इंटरनेट सिग्नल्स दे वर ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी इंटरनेट सिग्नल्स थे वो हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ट्रांसफर करते थे। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या लगेगा आपको? कंडक्टर। तो वायर कौन सी होनी चाहिए? कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टर क्या है? मेटल। मेटल क्या है? सॉलिड। सॉलिड में अरेंजमेंट क्या होता है? बराबर दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होता है सेम। इसको बोलते हो पीरियोडिक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक अरेंजमेंट। एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको एक एटम दिखेगा। व्हाट इज एटम? एटम हैज न्यूक्लियस एंड इट हैज इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में। करेक्ट। मेटल्स में व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल्स इन जनरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। अब ऐसा है, आगे तो आएगा डिटेल में, अभी से समझ लो। मेटल्स नॉर्मली हैव 1 और 2 और 3 वैलेंसी। उसके लास्ट शेल में या एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो या फिर तीन। तो लास्ट शेल में जब एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर। इलेक्ट्रॉन कौन है? नेगेटिव। न्यूक्लियस कौन है? पॉजिटिव। तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा डिस्टेंस हुआ उतना ही फोर्स, वीक होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर है उतना उसका फोर्स क्या है? कम है। तो मेटल्स में लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 और 2 और 3। व्हेन यू हैव 1 और 2 और 3 वैलेंसी, इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अवे, फार अवे। फार अवे का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ मतलब इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिला, और कहाँ से मिल रहा है? सराउंडिंग के हीट से। सराउंडिंग में हीट है ना, हमको भी लगता है गर्मी हो रही है, तो वो हीट सिर्फ हम नहीं एब्जॉर्ब करते, वायर भी एब्जॉर्ब करता है। वायर एब्जॉर्ब करते हैं मतलब वायर में जो एटम्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। पहले एटम में जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। पता है ना, एटम इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बन गया पॉजिटिव। इसको बोलते हो पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हो इसको? तो यहाँ मैंने जो मेटल वायर दिखाया है इसमें हर एक डॉट कौन है? पॉजिटिव आयन। कौन है ये? पॉजिटिव आयन के पास क्या क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और सराउंडिंग में कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, बाकी सब वहीं पे है। आपको पता है मैक्सिमम मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। क्यों? क्यों? because mass of proton and mass of neutron is very large compared to mass of electron। 1800 टाइम ज्यादा है। mass of one proton is 1800 times greater than mass of electron। तो मैक्सिमम मास ऑफ एटम कहां से आएगा? न्यूक्लियस से। कहां से आएगा? ये जो रेड डॉट्स थे ये कौन थे? पॉजिटिव आयॉन्स। पॉजिटिव आयॉन्स के पास कौन क्या क्या था? क्विक क्या क्या था? न्यूक्लियस था। तो ये हेवी है, इट इज वेरी हेवी। हेवी होना, जितना जितना ज्यादा मास होगा उतना इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। एक एक एटम में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे के सारे कौन है फिर? पॉजिटिव आयॉन्स। अब होता क्या है कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट भेजना है
मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन मैंने अभी बताया हीट एनर्जी पूरे वायर के पास है, पूरे वायर के पास है, मतलब आयंस के पास भी है और इलेक्ट्रॉन्स के पास भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा था, हमको क्या भेजना है, सिग्नल, डेटा इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो ये जो आयंस है दे आर वाइब्रेटिंग। क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी इनको भी मिल रहा है। ये जगह छोड़कर जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, दे आर हेवी, दे आर हेवी, तो ये जा नहीं सकते, लेकिन दे कैन वाइब्रेट। सो व्हेन दे वाइब्रेट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन। इलेक्ट्रॉन को जाना था लेकिन आयन वाइब्रेट हो रहे थे, तो क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन को क्या बोलते हो पता है, रेजिस्टेंस। सुना है क्या ये वर्ड, रेजिस्टेंस? क्या बोलते हो रेजिस्टेंस, कैसे डिफाइन करते हो, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, कोलिजन से। किसका कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का, किसके साथ, आयन के साथ। अब इसका हमारे टॉपिक के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सपोज मुझे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर सिग्नल भेजना है, 1000 किलोमीटर। जितना लेंथ ज्यादा होगा उतने ही कोलिजन्स ज्यादा होंगे, है ना, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन आया, कोलिजन हुआ, फिर आगे गया, कोलिजन हुआ, फिर आगे गया, कोलिजन हुआ। तो जितना लेंथ ज्यादा है उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही सिग्नल का लॉस होता है। क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट। ना ठंड में करते हैं हम ऐसा, करते हैं, क्यों करते हैं, हीट जनरेट करने के लिए। हीट जनरेट क्यों हुआ, फ्रिक्शन। योर वन हैंड इज जनरेटिंग फ्रिक्शन विथ अदर। तो जब कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। ज्यादा कोलिजन कब होगा, जब वायर का लेंथ ज्यादा होगा। मतलब अगर आपको सिग्नल भेजना है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर, और अगर आप नॉर्मल वायर का यूज कर रहे हो, तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू रेजिस्टेंस, बराबर, करेक्ट। अब ऑप्टिकल फाइबर में हमने इलेक्ट्रॉन यूज किए गया। ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रॉन था, कौन था, लाइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा क्या, तो रेजिस्टेंस नहीं तो लॉस नहीं, तो देयर इज लो, वेरी लो लॉस। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, यू हैव लो लॉस, इसको बोलते हैं लो एटीन्यूएशन लॉस। जब लॉस कम है तो द लॉस इन ट्रांसमिशन इज वेरी लेस, the loss in transmission is very small, and hence signal can be sent, and hence signal can be sent to several kilometers, actually several hundreds of kilometers. इसी को मैंने नोट्स में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मीनिंग सेम है। मैंने लिखा है यहाँ पे, द लॉस इन पावर इज वेरी स्मॉल, सो दैट अ सिंगल केबल कैन बी यूज फॉर सेवरल किलोमीटर्स। यहाँ तक क्लियर। अगर करंट का यूज करते, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते सिग्नल भेजने के लिए, तो लॉस क्या होता, ज्यादा होता। हो सकता है हमने जितना सिग्नल भेजा उसका 50% लॉस हो गया, हो सकता है, राइट, ऐसा होता भी है, करेक्ट। तो ये सेकेंड एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट एडवांटेज, ब्रॉड बैंडविड्थ, मतलब अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी अप टू 90,000 सिग्नल्स। दूसरा एडवांटेज क्या है, लो लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम है। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, बिकॉज आई हैव यूज्ड ऑल दिस कनेक्शंस, तो कभी कभी तो ऐसा था कि ईमेल भेजना है, एक बार भेजा, दो बार भेजा, पहुंचा ही नहीं, सिग्नल बीच में वायर ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ हीटिंग। गर्मी के दिन में ऑलरेडी 46-47 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से रेजिस्टेंस उसका हीटिंग अलग, तो समटाइम्स वायर यूज टू मेल्ट डाउन। वायर मेल्ट होने की वजह से सिग्नल तुमने भेज तो दिया, पहुंचे ही नहीं, राइट। तो अब ये सारे प्रॉब्लम खत्म बिकॉज ऑफ
ऑप्टिकल फाइबर। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसको मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। वेल बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल हैव घर पे पुराना वाला टीवी है, बड़ा? हाँ, अगर आप देखोगे उसके बैक साइड में पिन होता है जहाँ पे आप केबल का पिन लगाते हो, करेक्ट? समटाइम्स वो पिन लगाते लगाते यू विल फील कि करंट लग गया। नॉर्मली अभी तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी वो पुराना टेक्नोलॉजी का केबल कनेक्शन खत्म हो गया, एवरीवन इज नाउ डिजिटल। बट जिनको पता होगा, जिन्होंने देखा होगा, जो पुराने टीवी थे, पुराने ओल्ड टीवी, आउटडेटेड टेलीविजन सेट्स, उसमें केबल कनेक्शन के लिए एक पिन कनेक्टर था। पिन कनेक्टर की वायर को काटोगे ना, उसमें 3 वायर निकलेगी, 2 या 3। एक वायर था ग्राउंडिंग का। अगर प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है तो आपको करंट लगेगा। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, लाइटनिंग, बिजली गिरती है ना। व्हाट इज व्हाट इज लाइटनिंग? हाँ, बिजली तो है, लेकिन वो है क्या? क्या है वो? बिजली मतलब क्या है? बोलते हैं ना बिजली गिरी, मतलब क्या गिरा? करंट, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आप पहले छत के ऊपर एंटेना लगाते थे, देखो होता क्या है, अभी अच्छे से समझ लो। समथिंग मोर बट इंटरेस्टिंग। बिजली गिरने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड ग्राउंड। उनको कहाँ जाना है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जाने के लिए उनको चाहिए रास्ता। रास्ता कौन देता है? एंटेनास, टॉवर्स। ये जो मोबाइल फोन के टावर होते हैं वो एंटेना होता है, वो ट्री, राइट? तो जो टॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दे बेसिकली दे आर लाइक पाथ, रास्ता है वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी बीम। तो उसको क्लाउड से कहाँ पे आना है? जमीन पे। एयर के थ्रू तो जा नहीं सकता, राइट? जाता भी है एयर के थ्रू, लेकिन देन दे नीड अ टॉल ऑब्जेक्ट। तो पहले ये भी प्रॉब्लम था, बहुत बार तो ऐसा हुआ, वो ऊपर लगाया एंटेना सिग्नल के लिए, देखना था दूरदर्शन, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन आके बिजली गिर गई उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी प्रॉब्लम था, रिस्की है। एंड बाय द वे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसा बोलते हैं, सुना होगा, बहुत जोरदार बारिश हो तो कभी भी पेड़ के नीचे मत रुको, कभी भी टॉल बिल्डिंग के नीचे मत रुको, कभी भी टावर के नीचे मत रुको। क्यों? बिकॉज बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, राइट? तो दिस केस ऑप्टिकल फाइबर, इसमें हमने कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया क्या? यहाँ तो करंट की बात ही नहीं है। तो इन दिस केस कितनी भी जोरदार बारिश होने दो, कितने भी कड़क बिजली आने दो, इट विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसमें कंडक्टर है ही नहीं। तो दिस इज एक्स्ट्रा एडवांटेज। जो बिजली गिरने का डर था वो खत्म, राइट? देन नंबर 4, और व्हाट इज देन? थेफ्ट प्रिवेंशन। थेफ्ट प्रिवेंशन, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको चोरी करके कोई फायदा नहीं है। आई एम नॉट जोकिंग, यू मस्ट नो। पता तो होगा, ये सब इधर के ही हो, लोकल हो, हमारे सिटी से पास में ही, साकरी नाम का गांव है। साकरी से आगे जाओगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जैताने निजामपुर। वहां पे सुजलॉन, विच इज अ डच कंपनी, नीदरलैंड का है, उसने विंड मिल लगाया था, अभी भी है। वो इंडिया का सबसे बड़ा विंड मिल होने वाला था, जो हुआ नहीं कभी। वाई? बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, उसको ट्रांसमिट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए भी कॉपर वायर यूज होता है, एंड कॉपर इज एक्सपेंसिव। तो लोगों ने वायर के वायर चुरा लिए। तो नहीं, कॉपर इज एक्सपेंसिव,
जिनके घर में एसी होगा या कहीं पे भी एसी इंस्टॉलेशन देखा होगा, तो इंस्टॉलेशन के लिए वायर यूज होता है कॉपर का। सुना है कॉपर वायर? Oh, it's very expensive. It is around 250 to 300 rupees per square feet per feet. एक फीट का वायर आपको मिलेगा 200-300 रुपए के आसपास। अब सोचो, अगर हम डेटा ट्रांसमिशन इंटरनेट कॉपर वायर के थ्रू भेज रहे हैं, आज तो चलेगा, कल सुबह उठ के देखा तो वायर ही गायब है, राइट? हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? फाइन ग्लास ट्यूब है। ग्लास का क्या कोई यूज करेगा? लेके भी जाएगा तो फ्री में भी कोई नहीं लेने वाला उससे, तो चोरी करके फायदा है क्या वो? तो दिस इज वन एडिशनल एडवांटेज। तो थेफ्ट प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि इट डज नॉट यूज कॉस्टली एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाइक कॉपर। तो वो भी लिखा है डिटेल में, डिटेल आप देख ही सकते हो। इट डज नॉट यूज कॉपर और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल। थेफ्ट प्रिवेंशन, it does not use copper or other expensive metal or material, right? But this is true. मैंने कोई स्टोरी बना के नहीं बताया आपको सुजलॉन का। दिस इज व्हाट हैपेंड। वो एशिया इंडिया का सबसे बड़ा विंड मिल बनने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कॉपर वायर आया और कॉपर वायर गया, तो प्रोजेक्ट भी गया। नेक्स्ट नंबर 5, अगला एडवांटेज है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको अभी भी बताया, जब लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको सिग्नल भेजना होता है, अगर आप नॉर्मल कंडक्टिंग वायर का यूज कर रहे हो, तो हीटिंग की वजह से अगर वायर कहीं पे ब्रेक हो गया तो देयर इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? और दूसरी एक चीज ये भी है, शायद आपने एक्सपीरियंस किया नहीं, बट जब लैंडलाइन फोन थे, जब करंट के थ्रू सिग्नल भेजते थे, तो इजीली इंटरसेप्ट हो सकता है। कोई भी आपके लैंडलाइन कनेक्शन में वायर जोड़ देगा, यू कैन ऑल्सो हियर व्हाट यू आर सेइंग। तो बहुत बार हुआ, हमारे घर में 4 लैंडलाइन थे, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, 2 फर्स्ट फ्लोर पे। फोन बजा, मैंने उठा लिया, यहाँ से फोन था मम्मी के लिए, और उनकी बातें 1-1 घंटे तक, आज इस सीरियल में ये मर गया, आज वो सीरियल में वो मर गया। तो द आइडिया इज सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी ये टॉपिक है इतना बोरिंग, तो मुझे थोड़ा सा पुअर जोक्स पास करने पड़ते हैं, पुअर जोक्स, यू नो, पीछे। तो जो नॉर्मल वायर्ड कनेक्शन है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट सिक्योर्ड। एक तो इंफॉर्मेशन की चोरी हो सकती है, इंफॉर्मेशन की, वायर की नहीं। दूसरा, इंटरनल डैमेजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मेल्ट डाउन। तो दोनों ही प्रॉब्लम थे। तो जो 5वां पॉइंट है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो देयर इज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल डैमेजेस। तो ऑप्टिकल फाइबर में हीटिंग होता नहीं है। जब हीटिंग होता नहीं है तो वायर का मेल्टिंग भी होता नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो देयर इज सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब योर इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड। सिग्नल भेजा तो पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में वायर मेल्ट डाउन हो गया, पहुंचा नहीं। चांसेस है वायर कहाँ कट हो गया तो अलग चीज है, और वो इतना इजीली होता नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी स्टर्डी मटेरियल, इजीली वो टूटता नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट, अगला है हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने कल ही बता दिया था आपको, अराउंड 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, एक्चुअली वेरी हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, जो जेई नीट के लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन इन जेई एग्जाम। सपोज यू गो टू अ लाइव कॉन्सर्ट, पता है लाइव कॉन्सर्ट, राइट? यू आर स्टैंडिंग 300 मीटर फ्रॉम द स्टेज, जहां पे सिंगर गाना गा रहा है उससे आप 300 मीटर दूर हो, राइट? द स्पीड ऑफ साउंड in air is 330 meter per second. Speed of sound is 330 meter per second.
आप कितने दूर हो, 300 मीटर, मैं 330 मान लेता हूँ, तो योर डिस्टेंस इज 330 मीटर एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड सिंगर ने जनरेट किया वो आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये था, सपोज देयर इज अ फ्रेंड who is in some other country who is watching the live telecast, वो आ नहीं पाया but he is watching live telecast, correct, through optical fiber, good। और स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर वो आपको फाइंड करना है। उन्होंने ये पूछा था कि हु विल रिसीव द सिग्नल फर्स्ट, वो जो भी साउंड जनरेट हुआ लाइव कॉन्सर्ट में हो उसने पहले सुना कि जो घर पे बैठा है उसने पहले सुना, क्योंकि स्पीड इज वेरी हाई इन दिस केस, करेक्ट। तो हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट। तो जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं अभी रिसेंटली जो भी आप देखते हो, क्रिकेट मैच हो, वट एवर इट इज, न्यूज का लाइव टेलीकास्ट हो, वो सारे के सारे नॉर्मली दे आर डन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब let us move to second important application, that is prism binocular। अच्छे से समझ लो ये भी। पहली बात तो बाइनोक्यूलर मतलब क्या, what do you mean by binocular, what is the meaning of binocular? दूरबीन, good। so obviously दूरबीन बाइनोक्यूलर you use to see an object जो बहुत दूर है, it is extremely far away। now if you see, आपको पता होगा, सबने यूज भी किया होगा, ऐसा कोई है कि जिसने कभी दूरबीन देखा है नहीं? Is there anyone who has not seen दूरबीन? नहीं। बाइनोक्यूलर दूर का देखना है, वो दूर के देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप बोलते हो दूरबीन, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोक्यूलर। अब प्रॉब्लम ये है, बाइनोक्यूलर विल हेल्प यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे, लेकिन उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना एरिया आप देख सकते हो, कितना एंगल आप देख सकते हो, इट इज लिमिटेड। व्हाई इट इज लिमिटेड? बिकॉज यू मस्ट नो, ये जो दूरबीन है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। तो बाइनोक्यूलर कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब आप कितनी दूर तक देख सकते हो वो नहीं, आप कितने एरिया को कवर कर सकते हो उसको बोलते हो फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू इज लिमिटेड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्यूब्स। हमारे पास यहाँ पे जो 2 ट्यूब्स थे दूरबीन में, बाइनोक्यूलर में जो 2 ट्यूब्स है, उन दोनों ट्यूब का कितना डिस्टेंस है, दैट विल डिसाइड व्हाट इज योर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना एंगल, कितना एरिया कवर करोगे। जितना ये दोनों ट्यूब दूर होंगे उतना ही ज्यादा एरिया कवर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर, राइट। तो ज्यादा अगर एरिया कवर करना है तो ये जो 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी मोर। बट वेट, दूरबीन देखने के लिए किस में से देखोगे, अपने आंखों से देखोगे, है ना? नहीं, आंखों से नहीं देखते, कान से देखते हैं, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज दिस कि अगर हमको ज्यादा एरिया कवर करना है, मतलब वाइड वाइड एंगल चाहिए, वाइड फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो बढ़ा दोगे, आंखों का डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? यू कैन नॉट शिफ्ट योर टू आई, कर सकते क्या शिफ्ट? नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट शिफ्ट। इसका मतलब द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बाइनोक्यूलर इज लिमिटेड ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आई। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylindrical tubes। The field of view is limited by the distance between the 2 tubes, and the distance between the 2 tubes
कैनॉट बी ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन टू आईज। नहीं तो एक साइड से देखोगे दूसरा साइड में रह गया, एक आंख से देख रहा है दूसरा कुछ दिख नहीं रहा। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम ऐसे बाइनोकुलर बनाते हैं जिसमें क्या है, प्रिज्म है। व्हाट इज प्रिज्म? आगे जाके प्रिज्म आएगा, अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, प्रिज्म लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं, उसमें से एक होता है राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो राइट एंगल प्रिज्म में क्या होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है? देन पहले तो अच्छे से समझ लो, ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। कितना है? डू यू रिमेम्बर क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। याद है ये, हमने डिराइव किया था ये, याद है? डिराइव किया था कि नहीं किया था? What is critical angle? The angle inside, angle of incidence inside denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. अगर मेरे पास ये प्रिज्म ग्लास का है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। 3/2 तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 पता है कितना होता है? 0.666। लॉग बुक में एक साइन का टेबल है, नेचुरल साइन, उसमें ये वैल्यू ढूंढोगे तो आपको मिलेगा क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 42 डिग्री। मतलब ग्लास मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर लाइट 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, इफ द लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री, सबसे पहले रिमेंबर दिस, ये लाइट बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। तो रिफ्रैक्शन कितना? 0। तो लाइट इस सरफेस पे आने के बाद अब डिपेंड करेगा ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ग्लास टू एयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल आया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक स्टेज आएगा जब ये जो लाइट है ये 90 डिग्री से बेंड हो गया। कितने डिग्री से बेंड हो गया? 90 डिग्री से बेंड हो गया, राइट। तो प्रिज्म बाइनोक्यूलर समझने के लिए पहले बेसिक आइडिया समझ लो, प्रॉब्लम क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। प्रॉब्लम ये था, हमने बाइनोक्यूलर यूज किया टू सी अ फार अवे ऑब्जेक्ट, वो तो दिखा, लेकिन एरिया जितना वो कवर कर पा रहा है दैट इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड? क्योंकि अगर एरिया जितना कवर हो रहा है वो बढ़ाना है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, तो दोनों ट्यूब्स का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अल्टीमेटली ट्यूब का डिस्टेंस उतना ही होगा जितने आपके आंखों का डिस्टेंस है। अगर आप ट्यूब का डिस्टेंस बढ़ाते हो तो आप एक ही आंख में से देख पाओगे, दूसरे से नहीं देख पाओगे। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करके हम फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा सकते हैं क्या। अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमने एक यूज किया राइट एंगल प्रिज्म। प्रिज्म शुड बी राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री प्रिज्म में होना चाहिए। अब एक रे ऑफ लाइट आया, कितने एंगल पे इंसिडेंस हुआ? 0 पे, तो रिफ्लेक्शन कितना? 0, तो सीधा आया। अब ये जो सरफेस है हाइपोटेन्यूज, ये रे ऑफ लाइट जब हाइपोटेन्यूज पे आएगा तो डिपेंडिंग ऑन ये एंगल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो रे ऑफ लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। हम जानबूझ के ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को 42 डिग्री से ज्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा हुआ तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अब 42 से ज्यादा मतलब 45 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। हमने एंगल कितना सेट किया?
हमने एंगल इतना सेट किया कि लाइट शुड बेंड बाय 90 डिग्री, क्योंकि लाइट का बेंडिंग अगर 90 डिग्री से होगा तो वापस इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहाँ पे, लेट अस से एसी सरफेस पे, एसी सरफेस पे वापस रे ऑफ लाइट क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल होना मतलब सीधा जाना। तो लाइट पहले ऊपर से नीचे आया, टर्न लेके सीधा गया, तो एक ही बार बेंडिंग हुआ, कितने से बेंडिंग हुआ, 90 डिग्री। अब इसने हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, लुक, हम नॉर्मल बाइनोक्यूलर में ट्यूब का डिस्टेंस बढ़ा नहीं पा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डू समथिंग लाइक दिस। हम ये जो ट्यूब है जहां से आप देख रहे हो उसके डिस्टेंस को बढ़ाते ही नहीं है, वी डू नॉट इंक्रीज दिस डिस्टेंस। सिर्फ करते क्या है फिर, जस्ट हैव अ लुक, समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये आ गया हमारे पास पहला ट्यूब। बाइनोक्यूलर में कितने ट्यूब होते हैं, हाउ मेनी ट्यूब्स, हाउ मेनी ट्यूब्स, टू। ये हो गया एक ट्यूब। ऐसा एक दूसरा ट्यूब भी, यू हैव वन मोर ट्यूब। मैं बताऊंगा अच्छे से, तो थोड़ा सिर्फ ध्यान दो, यू जस्ट नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। ओके, तो ये आ गया आपके पास दूसरा ट्यूब। तो यू हैव अनदर ट्यूब। जो पीछे गड़बड़ कर रहे हो, अभी एक भी वर्ड सुनाई आया मेरे को, रिफ्लेक्शन दिखता है मेरे को इधर से, मैंने पहले ही बोला आपको, दिस इज ब्लैक फॉर सम रीजन, आई कैन डू व्हाइट आल्सो। मैं कब से देख रहा हूँ, ध्यान यहाँ पे, नहीं पढ़ना है तो जाओ, नहीं, डोर इज ओपन, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी जस्ट लीव, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर फॉर योर अटेंडेंस, यहाँ ध्यान दो। ओके देन, तो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कैसे किया, उसको सॉल्व ऐसा किया कि हमने जिस दो आंखों से हमको देखना है उस ट्यूब का डिस्टेंस चेंज किया ही नहीं, तो चेंज क्या किया आपने, ऐसा हमने बना दिया, करेक्ट। अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लाइट विल कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट यहां से कहीं से आएगा, ऊपर से आएगा। रिमेंबर, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, हमको देखना है यहां से, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट आया, इसको 90 डिग्री से टर्न करना है। तो पहली बार 90 डिग्री से टर्न यहाँ पे हुआ, दूसरी बार 90 डिग्री से टर्न यहाँ पे हुआ, तो हम उसको दो बार रिफ्लेक्ट करवाएंगे थ्रू एन एंगल, हाउ मच, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री पे टर्न करवाने के लिए क्या यूज करना है, कौन सा प्रिज्म, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट करवाना है 90 डिग्री से, वो कौन से साइड पे इंसिडेंट होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक राइट एंगल प्रिज्म सच दैट द लाइट इज इंसिडेंट एट द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट। फिर यहाँ पे भी दो प्रिज्म यूज करोगे, यहाँ पे ये पहला प्रिज्म आ गया, राइट एंगल प्रिज्म, फिर वापस से यहाँ पे दूसरा प्रिज्म आ गया, राइट। So how many prisms are we using? Four in total. Two prisms in each tube. तो हमने ना आंखों का डिस्टेंस चेंज करवाया ऑपरेट करके, गए डॉक्टर के पास शिफ्ट कर दो, नहीं, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन आई इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब, इसको आईपीस बोलते हैं जिससे आप देखते हो, और ऊपर के ट्यूब को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू, इट हैज इंक्रीज बाय सो मेनी फैक्टर्स, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स भी कर सकते हो, कंपेयर कर लो, जस्ट कंपेयर नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स को कंपेयर कर लो, लुक, लुक, डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब वाज सेम, सेम डिस्टेंस है ट्यूब का, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू हैज इंक्रीज मे बी 10 टाइम्स, मे बी 5 टाइम्स। तो पहले आप जितना एरिया कवर कर पा रहे थे, अब उससे कई गुना ज्यादा यू विल बी एबल टू कवर। क्लियर यहाँ तक, राइट। तो
एज यू नो दिस इज प्योरली थियोरेटिकल टॉपिक, एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको, क्या करना था हमको, व्हाट डू यू नो, फील्ड ऑफ व्यू, क्या किसका फील्ड ऑफ व्यू, बाइनोक्यूलर का, टेलीस्कोप नहीं, बाइनोक्यूलर। तो बाइनोक्यूलर कौन सा बाइनोक्यूलर, यूजिंग टू ट्यूब्स, बाइनोक्यूलर यूजिंग टू ट्यूब। क्या प्रॉब्लम है इसका, हैव अ लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, because the field of view is restricted by the distance between the two tubes, and the distance between the two tubes cannot be greater than the distance between two eyes. To solve this problem, what we do is we use right angle prism to bend the light by 90 degrees using the concept of total internal reflection. तो नोट्स में ऐसा ही कुछ लिख के रखा है, the limitation can be overcome by using two right angle glass prism, और right angle glass prism का critical angle कितना है 42 डिग्री। then these prisms are used to reflect, वो जो prism थे these prisms are used to reflect light by 90 degree twice। पहली बार बेंड हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ 90 से, दूसरी बार बेंड हुआ, तो ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से समझ में आया। तो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन क्या था, लिमिटेड क्या था, फील्ड ऑफ व्यू। बाइनोक्यूलर्स यूजिंग टू cylindrical tube have the limitation of field of view. The field of view is restricted by the distance between the two tubes, which cannot be greater than the distance between two eyes. Right? Clear? So this limitation can be overcome with the help of right angled prism. Right angle glass prism have critical angle equal to 42. So if the light is incident at an angle greater than 42 degrees, the light will bend by 90 degrees. Basically, the light will be totally internally reflected. Now, the clear? Pakka? So we use two glass prism to bend the light twice by 90 degrees. Clear? Last application of total internal reflection is periscope. अब पेरिस्कोप क्या है वो भी समझ लो अच्छे से, यहाँ पे पूरा theoretical topic है, that is why I am not writing down point by point here, so you need to pay attention here. Third and the most important and interesting application as far as defense system is concerned. तो जो प्रिज्म बाइनोक्यूलर था और पेरिस्कोप जो है ये डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत काम की चीज है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नो, हमारा जो एनिमी है, मे बी नेबरिंग कंट्री, एनिमी शिप होगा, तो एनिमी शिप को डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हो, सबमरीन। मैं पानी के अंदर डाल दूंगा, आप लगे गड़बड़ की इधर गए नाम से। So you have enemy ship, and to detect enemy ship we use submarines. Submarines मतलब they are inside water. You already know when light travels from denser medium to rarer medium, सबसे पहले ये तो स्ट्रेट जाएगा, क्यों, along the normal। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही रे ऑफ लाइट विल आल्सो बेंड। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा एंगल आएगा इनसाइड वाटर फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। इसको क्या बोला आपने, क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, if the angle is greater than critical angle, the light will be totally internally reflected. अब एक चीज और समझ लो, there is something called as principle of reversibility. There is something called as principle of reversibility. रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाता है वो उसी डायरेक्शन में रिवर्स आता है। मतलब
अगर लाइट को वाटर से एयर में जाना है या एयर से वाटर में आना है तो पाथ रिमेन्स सेम। जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड गया वहीं से वो बैकवर्ड भी आ सकता है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट कौन है? शिप। शिप है पानी के बाहर, तो क्या होगा? कम से कम ग्रेजिंग इंसिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजिंग, राइट, करेक्ट। तब जाके यू कैन सी फ्रॉम इनसाइड द वाटर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो इस कोन के बाहर यू कैनॉट सी एनीथिंग। तो प्रॉब्लम क्या है? जो कुछ भी पानी के अंदर है, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो सबमरीन हो, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है? कोन। कोन के बाहर कुछ नहीं दिखता। इसलिए आपको पता होगा, शार्क शार्क अपने टारगेट को, जब तक टारगेट पास में नहीं आता अटैक नहीं करता। क्यों? उसको पता ही नहीं होता कि वहां पे कोई है। because why? Because the target is outside the cone because of total internal reflection. Similarly, अगर कोई एनिमी शिप आ रहा है और वो दूर है तो दिखेगा नहीं। वो दूर है तो वो कोन के बाहर है, कोन के बाहर है तो दिखेगा क्या? नहीं, नहीं दिखेगा। तो डिटेक्ट होगा क्या? नहीं। जब डिटेक्ट नहीं होगा, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। दे यूज सोनार सिस्टम। यू नो व्हाट इज सोनार सिस्टम? साउंड वेव इमिट करते हैं वो, साउंड वेव्स। यू नो, साउंड वेव आएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। जब साउंड वेव जनरेट हुआ तब स्टॉप क्लॉक चालू किया। जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो टाइम मेजर कर लिया। फॉर एग्जांपल, you have 10 seconds. For example, let us say the speed of sound, is, let us say 300 meter per second. मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ। व्हाट इज स्पीड का डेफिनेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। 300 स्पीड था, टाइम कितना था? तो कितना हो गया? तो डिस्टेंस कितना है? उसका हाफ। क्यों हाफ? गया और वापस आया, तो डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, राइट। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उनके पास भी है। इफ यू कैन डिटेक्ट देम दे कैन आल्सो डिटेक्ट यू। अब प्रॉब्लम था कि हमारा सबमरीन कहाँ है? इनसाइड वाटर। उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है? एक कोन। कोन के बाहर कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिख सकता। तो फिर व्हाट दे डू इज दे पुट अ ट्यूब आउटसाइड दिस कोन। पानी के अंदर से पानी के बाहर एक ऐसा ट्यूब देते हैं वो, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? राइट। एक कार्टून में दिखाते हैं बहुत बार, डकटेल्स, राइट। तो होता क्या है, हर एक सबमरीन में यू विल फाइंड सच अ ट्यूब। तो द रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मे बी एनिमी शिप will be first reflected by 90 degree and then again reflected by, और ये 90 डिग्री रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हो? कैसे प्रोड्यूस करते हो? कौन सा प्रिज्म यूज करते हो? राइट एंगल प्रिज्म यूज करते हो। तो यू यूज राइट एंगल प्रिज्म टू बेंड द लाइट 2 times by how much? How much? 90 degree. So periscope is the third use of total internal reflection. अब इसको लिखने के लिए ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है, periscope is used to see an object outside the surface of water from inside the water. वाटर के अंदर से वाटर के बाहर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो वी विल यूज पेरिस्कोप। It consists of two right angle prism which are used to reflect the light by 90 degree twice. यहाँ तक क्लियर? पक्का? डन? So we will stop for today.